everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to see the topic that is ionic equilibria. Okay, so we are already done with this topic in the previous 6 videos. If you have missed those videos, you can click on the I button above and you can see those videos. And today we are going to discuss exercise, that is the questions given at the end of the chapter. Okay, and this is the topic from the Maharashtra State Board syllabus standard 12th. Okay, and whatever questions are given at the end of the chapter, that we are going to cover today in this video. So let's begin with choose the correct alternative. The first question is the pH of 10 raised to minus 8 molar of HCl is. So you have to tell the pH of 10 raised to minus 8 molar HCl. Okay, so the first you need to know the H plus ion concentration. So as you can see, this is 10 raised to minus 8 molar HCl. So H plus ion concentration will be obviously less than that of the 10 raised to minus 8 because the HCl will be diluted in water, correct? So the concentration of H plus will be less than that. Okay, that is 10 raised to minus 8, and if you calculate its value and it is HCl, so you can say that the pH of this HCl will be less than 7 because HCl is acidic in nature and all acids have pH less than 7. Okay, so this concentration will not help you to calculate, but you have to calculate along with the help of water concentration of water, that is the H plus ion concentration of water, that is 10 raised to minus 7. Along with that you have to calculate this. So this calculation is a little complex, but yes, you can guess the answer. As it is an HCl, so the pH cannot be 8 or greater than 7, and the pH cannot be 7 because it is not neutral and HCl is acidic. So however dilute it may be, its pH will be always less than 7. Next is which of the following solution will have pH value equal to 1? Now this question is little difficult, so we'll discuss it one by one with each option. Okay, so the first option says that 50 ml of 0.1 molar HCl plus 50 ml of 0.1 molar NOH. So you can see here the concentration of H plus and OH minus ion is same. Okay, because you can see here both are the mono basic and monoacidic bases and acid. Okay, so here only one H plus ion will be given, here also one OH minus will be given. Both the volume is same, both the concentration is same, so the concentration of H plus ion and OH minus is same. And if both the concentration is same, that is always a neutral solution, because neutral solution only have the concentration of H plus and OH minus the same, and hence the pH of this solution will be 7 because neutral solution have pH 7. For the next one, you can see 60 ml of 0.1 molar HCl plus 40 ml of 0.1 molar NaOH. Now you have to talk in the term of H plus and OH minus concentration. So H plus ion concentration here will be 6 into 10 raised to minus 3 mole, while the concentration of OH minus will be 4 into 10 raised to minus 3 mole. Okay, as if you given one, if you solve it, will H plus ion concentration is 6 into 10 raised to minus 3 and OH minus concentration is 4 into 10 raised to minus 3. So the excess of H plus ion concentration, because H plus ion concentration is greater than the OH minus concentration, you can clearly see in these two values. So H plus ion concentration is greater, so excess of H plus ion concentration is 2 into 10 raised to minus 3. Okay, so H plus ion concentration, which is excess, is 2 into 10 raised to minus 3. So the total volume of the solution is 0.06 plus 0.04.
in liters. Okay, so it will become 0.06 plus 0.04, which will equal to 0.1 liter. So total volume is 0.1 liter. So H plus ion concentration will be equal to 2 into 10 raised to minus 3 divided by 0.1. So whatever excess is there, that you have to divide by total volume. So that will give you answer 2 into 10 raised to minus 2. So this is the H plus ion concentration, and obviously the solution will be acidic because H plus ion concentration is more than OH minus. So the solution is acidic obviously, and therefore H plus ion concentration I have calculated now, which we can add in pH. So pH equals to minus log to the base 10 H plus ion concentration, and if you put this value you will get the pH 1.7. So the pH of the second one is 1.7. So obviously this is not my answer because I want pH 1. So next I will solve for the C. So 20 ml of 0.01 molar HCl plus 80 ml of 0.1 molar NaOH. So H plus ion concentration here will be 2 into 10 raised to minus 3 molar, and OH minus is 8 into 10 raised to minus 3 molar. So now you can see OH minus concentration is greater than H plus ion concentration. Okay, so OH minus concentration is greater than H plus ion concentration, and obviously the solution will be basic. So as the solution is basic, so obviously if the solution is basic, it is logically that the pH will be greater than 7, because for basic solution the pH is always greater than 7. So no need to calculate the pH for this option because OH minus concentration is greater than H plus, and therefore the solution is basic, and for basic solution pH is greater than 7. So no need to calculate here. You know that you will not get your answer 1. Then remaining is the D option. Obviously this will be the correct answer because all the 3 answers are wrong. So let's solve for this. So you will get the H plus ion concentration here 0.01 molar, 1.5 molar, and OH minus concentration as 0.05 molar. Now here again your H plus ion concentration is greater than OH minus concentration. So your H plus ion concentration, subtract this, you will get as 0.01 molar. So the total volume is again 0.1 liter, that is 0.075 plus 0.025, that is 0.1 liter. So the H plus ion concentration is 0.01 molar divided by 0.1 liter, that is 0.1 molar. So you got this answer for the H plus ion concentration of pH is equal to minus log to the base 10 of H plus ion concentration, and if you solve it you will get your answer 1, and therefore your option D is correct for this answer. Next is, which of the following is a buffer solution? So for this question you need to see buffer solution. So for buffer solution, here you can see this is also a salt and this is also a salt. So both are salt, correct? And both salt and salt in water is not a buffer solution. So obviously this is not the answer. If you see here, this is a weak acid, but you need a salt of strong base. For buffer solution, if you have a weak acid, you need a salt of strong base along with it. But you see here another acid, both are acid. So you can say here is common ion effect but not buffer. So this is also not the correct answer. Next, if you see here is a weak acid, and now there is a salt of strong base, that is the acetic sodium acetate, that is the NaOH salt, correct? So here is the weak acid and salt of its strong base, and therefore option C is a buffer solution, and D obviously is not again a buffer solution. Next, the solubility product of sparingly soluble salt AX is 5.2 into 10 raised to minus 13. Its solubility in mole decimeter cube is. So this type of question is already solved in your textbook, but I will show you in between of the chapter there is solved examples, correct? There somewhere this is solved. So AX you can consider as X as 1 because the coefficient of A is 1 and coefficient of X is also 1, so Y is 1. Correct. So if you consider AX as AgBr, so it is A and this is X, correct? So Ag is A and Br is X. So Ksp will be equal to S square. Okay, now Ksp is S square, therefore S equals to under root Ksp, and Ksp is given to you. You have to just find out its root and you will get your answer 7.2 into 10 raised to minus 7 mole per decimeter cube, and therefore here your answer is option, for the fourth one the option is A. Okay, next,
blood in human body is highly buffered at pH off. So for this also your answer is A. You have to learn this value. Okay, next is the conjugate base of this. So conjugate base, if you want to find out, you have to take the following compound as an acid. Okay, because acid only generates its conjugate base. So conjugate base is always generated by a acid. So you have to consider this as a acid. If it is a acid, it will donate H plus. So you have to see which of this molecule have one H plus less than this. Okay, that is the correct way of finding out the conjugate base of this. Okay, so this is the base. Okay, so if you want to find, this is the conjugate base of this, you have to find out. So conjugate base of this, if you have to find out, you have to treat this as an acid, and because the acid only can generate conjugate base, not the base. So if you are treating it as an acid, means you have to donate H plus from here. So you have to see which structure have one hydrogen less. And if you see in all the structure, only structure D has one hydrogen less. All other things are as it is. Oxygen is also as it is, only hydrogen is less. In all other structures, this is not the case. Okay, only D structure is the structure where there is only one hydrogen less, and that is the correct answer. So this is the conjugate base of this acid. Okay, so this acid has its conjugate base this. So next question, the pH for pH greater than 7, the hydroxyum ion, I have marked here the answer wrong, I guess. You can take the answer C. Okay, C answer is one hydrogen less. You can see, because it is H2O 4 times and now it is H2O 3OH. So here your 3 hydrogens are there. Okay, total how many hydrogens you need here is, see, your total here is 8 hydrogen. You need here 7 because it will donate the hydrogen. So 3 into 2 is 6. 6 plus 1 is 7. Once one hydrogen is donated, and all the 4 oxygen is as it is, as in the structure, and therefore your answer here is option C. Okay, mark that correction. By mistake I marked D. It is option C. Now for 7th question, for pH greater than 7, the hydronium ion concentration would be. So for pH greater than 7, the hydronium ion concentration will be less than 10 raised to minus 7 molar, because pH and H plus ion concentration is inversely proportional. Therefore we take the sign minus log, correct? They inversely proportional. So if pH is greater, then H plus ion concentration is less than 10 raised to minus 7 molar. Okay, so next is answer the following in one sentence. First question is, why cations are Levy's acid? Because the cations are electron acceptor. Okay, cations means positive charge. Positive charge means electron deficient. Electron deficient means they are going to accept electron, and therefore they are electron acceptor. And as they are electron acceptor, they are Levy's acid, because Levy's acids are electron acceptor. Next question is, why is KCl solution neutral to litmus? So why KCl solution is neutral? तो जब आप KCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे और लिटमस टेस्ट करोगे, तो रेड और ब्लू लिटमस दोनों भी अनचेंज्ड है, मतलब वो न्यूट्रल है. क्यों? क्योंकि KCl है पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड बना रहता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस KOH से. दोनों की बराबर मात्रा को यदि आप मिलाओगे तो आपको मिलेगा KCl, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, दैट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. अब जैसे ही ये दोनों, ये है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और इसलिए आपको पता होगा जो भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना रहता है वो होता है न्यूट्रल, क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व करते ही इक्वल मात्रा ऑफ, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एसिडिक प्लस बेसिक नेचर दिखाता है, और इसलिए KCl इज अ न्यूट्रल. Okay, in its solution. Now how are basic buffer solution prepared? So basic buffer solution are prepared by a, ओके, बेसिक बफर की बात करें तो प्रिपेयर होता है बाय वीक बेस अलॉन्ग विद द सॉल्ट, अलॉन्ग विद इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, तो आपको वीक बेस लेना है और अलॉन्ग उसकी सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो मिल जाएगा आपको बेसिक बफर. नेक्स्ट है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 into 10 raised to minus 5. कैलकुलेट परसेंट डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड दिस मच मोलर ऑफ सॉल्यूशन.
तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, के दिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन सी दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए कहा गया है, अल्फा एंड परसेंट डिसोसिएशन। तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास के दिया हुआ है दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁵, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है दैट इज 0.01 मोलार, और आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है अल्फा। उसके लिए आपको फाइंड आउट करना होगा के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और दूसरा फाइंड आउट करना है परसेंट डिसोसिएशन। सो परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला है अल्फा इंटू 100। तो पहले आप इस फॉर्मूला से अल्फा फाइंड आउट करोगे और इसको अल्फा को यहाँ पुट आउट करके परसेंट डिसोसिएशन फाइंड आउट करोगे, ठीक है। आपके पास सी है, तो सी इज 0.01 मोलर विच यू कैन इवन राइट एज 1 इंटू 10⁻⁻² मोलर। तो अभी के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के ए अपॉन सी। के ए का वैल्यू है, सी का वैल्यू है, ये दोनों पुट करो, इसे सॉल्व करो, तो आपको आंसर मिलेगा 4.242 इंटू 10⁻²। सो योर अल्फा इज 4.242 इंटू 10⁻², और ये मैंने सॉल्व किया अंडर रूट के ए अपॉन सी लेके, ठीक है। एक बार आपको अल्फा मिल गया तो जस्ट इस फॉर्मूला में अल्फा का सब्स्टिट्यूट करो। सो परसेंट डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा इंटू 100, अल्फा इज 4.242 इंटू 10⁻² इंटू 100 which will give you 4.242%. So your percent dissociation in this is 4.242%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ अ बफर सोल्यूशन। सो बफर सोल्यूशन का एक प्रॉपर्टी ये है कि डाइल्यूशन में भी उसका पीएच चेंज नहीं होता। दूसरा प्रॉपर्टी ये लिख सकते हो कि बहुत देर तक या बहुत दिन तक वो सोल्यूशन रखने के बाद भी, लॉन्ग टाइम तक वो सोल्यूशन रखने के बाद भी उसका पीएच नहीं चेंज होता। नेक्स्ट, द pH of a solution is 6.06. Calculate its H plus ion concentration. So pH of a solution is 6.06. अब फाइंड आउट करना है H plus ion concentration, तो सिंपल फार्मूला है pH इक्वल्स टू माइनस log to the base 10 of H plus ion concentration. So pH is minus log to the base 10 H plus ion concentration. H plus ion concentration आपको गिवन है, ठीक है, आपको सॉरी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, pH गिवन है, तो log टू द बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस pH। तो माइनस pH क्या हुआ, -6.06। और इसको अभी आपको मैंने पहले भी आपको वीडियो बना तक बताया है, जब भी आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है pH से, तो आपको +1 -1 यहाँ डालना पड़ेगा, और -6 से -1 को ये कर दीजिए, और +1 से 0.06 को सॉल्व कर दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा -7 + 0.94। -7 को ऐसे लिख सकते हो बार 7.94, और इसको सॉल्व करोगे तो H3 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग, क्योंकि लॉग टू द बेस 10 इधर आगे हो जाएगा एंटी लॉग। सो एंटी लॉग टू द बेस 10 ऑफ बार 7.94, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 8.710 इंटू 10⁻⁻7 मोलार। सो द pH of the solution is 6.06 and its H plus ion concentration is 8.710 into 10⁻⁻7 molar. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है जिसका pH आपको दिया हुआ है, pH कैलकुलेट करना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन दिया और pH फाइंड आउट करना है। सो कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01 मोलार, फाइंड आउट करना है pH का फॉर्मूला है माइनस log टू द बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पानी में पूरी तरह डिसोसिएट होने वाला है, बट आपको एक याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H प्लस आयन होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाई बेसिक एसिड, मतलब वो 2 H प्लस आयन देता है जब वो वाटर में डिजॉल्व होगा। जब भी आप H2SO4 को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो एक मॉलिक्यूल H2SO4 देगा 2 H प्लस। HCl इज अ मोनोबेसिक, क्योंकि वो पानी में डिजॉल्व होने के बाद एक ही H प्लस देता है, पर H2SO4 2 H प्लस देता है। इसलिए अब यहाँ पे H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगा वो 2 इंटू इट्स कॉन्सेंट्रेशन होगा। क्यों 2 इंटू, क्योंकि वो 2 H प्लस देने वाला है, तो इसके लिए इधर आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मोलार। अभी आपको पता है आपका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो आप उसको सिर्फ pH वाले फार्मूला में डालोगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस log टू द बेस 10 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2, और इसको सॉल्व करोगे तब आपको आंसर मिल जाएगा pH इक्वल्स टू 1.699। सो द pH ऑफ द 0.1 molar sulfuric acid is 1.699। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 का 2 H प्लस आयन जनरेट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसोसिएशन ऑफ H2S इज सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, नेम द फिनोमिना। तो H2S को यदि आपको डिसोसिएशन सप्रेस करना है तो आप HCl ऐड कर रहे हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, H प्लस। तो H प्लस ऐड करने के वजह से H प्लस का आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जो भी सल्फाइड बना है, सल्फाइड का एनायन बना है, वो एक्सेस ऑफ H प्लस के साथ रिएक्ट करके वापस H2S दे देगा। मतलब जो भी डिसोसिएट हो रहा है वापस बन रहा है, और इसलिए डिसोसिएशन ऑफ H2S सप्रेस हो रहा है। तो इससे कौन सा इफेक्ट रहता है, करेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। Why is it necessary to add H2SO4 while preparing the solution of CuSO4? तो इसका आप मेरे वीडियो नंबर 4 में जाके इसका आंसर देख सकते हो। तो एक्चुअली क्लियर सोल्यूशन पाने के लिए H2SO4 ऐड किया जाता है, बट वो क्लियर क्यों नहीं होता और CuSO4 टर्बिड क्यों रहता है और H2SO4 क्यों ऐड करना है, वीडियो नंबर मेरे 4 में जाके देख लीजिए। नेक्स्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग वफर्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पास है पहले एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट। तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड अलॉन्ग विद द सॉल्ट ऑफ इट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज NaOH। तो हो गया एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर के लिए आपको क्या चाहिए, वीक एसिड अलॉन्ग विथ इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हो गया एसिडिक बफर। नेक्स्ट आप देख सकते हो NH4OH which is a weak base along with its salt with strong acid, that is HCl। तो NH4OH और along with HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो NH4Cl मिलेगा। तो ये हो गया बेसिक बफर। तो बेसिक बफर क्या होता है, सॉल्ट ऑफ आपका वीक बेस अलॉन्ग विथ इट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो वीक बेस अलॉन्ग विथ इट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है बेसिक बफर। नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट प्लस बेंजोइक एसिड। सो बेंजोइक एसिड वापस वीक एसिड है और सोडियम बेंजोएट उसका सॉल्ट है विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड वीक एसिड है और उसका ही सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम बेंजोएट, इसलिए हो गया वापस एसिडिक बफर। नेक्स्ट है CuOH ट्वाइस प्लस CuCl2। सो CuOH ट्वाइस हो गया बिग बेस और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HCl, तो वापस ये हो गया बेसिक बफर। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो एसिडिक और बेसिक बफर। तो आपको देखना है कि आपके गिवन इसमें वीक एसिड दिया है कि बिग बेस। तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो ऑफकोर्स वो एसिडिक बफर है। नेक्स्ट वाले में NH4OH बिग बेस है तो बेसिक बफर है। फिर बेंजोइक एसिड वीक एसिड है तो एसिडिक बफर है, और CuOH ट्वाइस वीक बेस है तो बेसिक बफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू अर्नियस थियरी। तो इसके लिए आप मेरा वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, ठीक है। फिर व्हाट इज मेंट बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसके लिए भी वीडियो नंबर 1 देख लीजिए। नेक्स्ट है, लेवल द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। सो HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो ऑफकोर्स आपको पता है HCl इज एसिड, तो दूसरा वाला ऑफकोर्स उसके साथ बेस होगा, मतलब वाटर एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एसिड है उसके साथ वाटर के साथ प्रेजेंट, तो वाटर क्या एक्ट करेगा, बेस की तरह। तो एसिड 1 हो गया HCl और बेस 1 हो गया वाटर। अब HCl क्या करेगा, अपना H प्लस दे देगा और Cl माइनस बन जाएगा, तो कॉन्जुगेट बेस उसका हो गया Cl माइनस। तो उसका कॉन्जुगेट बेस कौन है, Cl माइनस। और वाटर क्या करेगा, एक H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और बन जाएगा एसिड, दैट इज अभी वाटर का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, H3O प्लस। सो HCl is the acid, its conjugate base is Cl minus, water is the acid, sorry, water is the base and its conjugate acid is H3O plus। सिमिलरली आप सेकेंड वाले के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। CO3 2 माइनस प्लस वाटर गिव्स OH माइनस प्लस HCO3 माइनस। सो CO3 माइनस आपको पता है वो बेस है, क्योंकि उसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने वाला है, इसलिए वो बेस है। तो अभी वो बेस है तो उसके साथ वाटर किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड। तो ये हुआ आपका बेस 1, ये हुआ आपका एसिड 1। अब वाटर एसिड की तरह एक्ट करेगा, H प्लस दे देगा तो OH माइनस बन जाएगा, तो वो हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस। So water is the acid and its conjugate base is OH minus, and CO3 2 minus is the base and its conjugate acid is HCO3 minus, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट अ रिएक्शन इन विच वाटर एक्ट एज अ बेस। सो वाटर को यदि आपको बेस की तरह रिएक्ट करवाना है तो आपको उसके साथ एसिड डालना होगा। सो वाटर प्लस HCl गिव्स यू H3O प्लस प्लस Cl माइनस, एंड दिस इज द रिएक्शन वेर वाटर अलॉन्ग विथ एसिड इज एक्टिंग एज अ बेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया सर्व्स एज अ लेविस बेस whereas AlCl3 is a Lewis acid explain। देखो लेविस थियरी क्या बोलता है, एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब एसिड कौन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, वो होता है लेविस एसिड। तो AlCl3 जो मॉलिक्यूल है उसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। AlCl3 मॉलिक्यूल में Al का जो है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मतलब उसके आउटर ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कोई भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बट AlCl3 में एल्यूमिनियम के आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इसकी वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और वो एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट करता भी है क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है स्टेबल होने के लिए। कोई भी एटम को स्टेबल होना होगा और स्टेबल होने के लिए तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और इसलिए AlCl3 उसमें का एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और इसलिए वो बन जाता है लेविस एसिड। अब एक लेविस बेस की बात करें तो लेविस बेस वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो लेविस बेस वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो अमोनिया ईजिली अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है और इसलिए वो हो जाता है बेस। तो AlCl3 एसिड क्यों है, क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, और अमोनिया बेस क्यों, क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड in its decimolar solution calculate the dissociation constant of acid। सो एसिटिक एसिड का परसेंट डिसोसिएशन कितना है 5%, कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या है 1 डेसीमोलर। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है Ka, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले आपको अल्फा फाइंड आउट करना होगा। तो अल्फा इक्वल्स टू परसेंट डिसोसिएशन डिवाइड बाय 100। सो परसेंट डिसोसिएशन इज 5 डिवाइड बाय 100 इज 0.05। तो ये हो गया आपका अल्फा। आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इज 1 डेसीमोलर दैट इज 0.1 मोलार। अभी फॉर्मूला यूज करो तो Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। तो Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर दैट इज 0.05 स्क्वायर इंटू सी दैट इज 0.1, और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड एसिटिक एसिड इज 2.5 इंटू 10⁻⁴। नेक्स्ट इज डिराइव द रिलेशन बिटवीन pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। तो ये इसके लिए आप मेरा वीडियो नंबर 3 देख लीजिए, ठीक है। pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 के लिए वीडियो नंबर 3 देख लीजिए। नेक्स्ट है एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन वेयर एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक एक्सप्लेन। तो सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड यदि इसकी बात करें तो सोडियम कार्बोनेट जब वाटर में आप डिजोल्व करोगे तब वो बनेगा NaOH, ठीक है। Na प्लस जनरेट करता है और कार्बोनेट दैट इज H वो बन जाता है वाटर के साथ तैयार करके HCO3-। अब NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस और इसलिए हो जाता है अल्कलाइन इन सोल्यूशन, अल्कलाइन इन नेचर। बट जब अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बनेगा अमोनिया प्लस Cl-। तो अमोनिया जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाता है और Cl- HCl। अब HCl होता है एसिड इसलिए वो होता है एसिडिक, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड। तो ऑफकोर्स वो बनाएगा सोल्यूशन में डिसॉल्व करते ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा NaOH दैट इज मेक द सोल्यूशन अल्कलाइन, और अमोनियम क्लोराइड बनाएगा एसिड इसलिए सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। नेक्स्ट है pH ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 3.2 इन इट्स 0.02 मोलार सोल्यूशन कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अब pH इज इक्वल टू log टू माइनस log टू द बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। आपको pH गिवन है, आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस pH दैट इज -3.2, और मैंने बताया है आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको ऐसे लिखना होगा -3 -0.2 +1 -1 -1 को -3 में डाल दीजिए और
1 से 0.2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा -4 प्लस 0.8, जो कन्वर्ट हो जाएगा बार 4.8 में. अब H3 plus ion concentration is equal to anti-log of bar 4.8. That is, the H3 plus ion concentration is equal to 6.310 into 10 raised to -4 molar. तो यहाँ पे H3 plus ion concentration क्या हो गया? 6.310 into 10 raised to -4 molar. अब मोनोबेसिक एसिड डिसोसिएट कैसे होता है? H प्लस वाटर गिव्स यू H3O प्लस A माइनस. ठीक है, तो H3O प्लस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी. ठीक है, मोनोबेसिक है मतलब वो एक ही H प्लस दे रहा है और एक ही A माइनस भी. तो अब H3O प्लस का क्या हो गया? अल्फा इंटू सी. अल्फा इक्वल्स टू H3O प्लस प्लस सी. H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है क्योंकि वन मोनोबेसिक है तो एक ही H प्लस देने वाला है, तो यही उसका कॉन्सेंट्रेशन है. डिवाइड बाई 0.02 इक्वल टू 3.16 इंटू 10 रेस टू -2. तो अल्फा यहाँ पे क्या हो गया? 3.12 इंटू 10 रेस टू -2. आपको फाइंड आउट क्या करना है? डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, दैट इज Ka. सो Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी. अल्फा आपको पता है 3.16 इंटू 10 रेस टू -2 रेस टू 2. सी आपको पता है 0.02 और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 2.0 इंटू 10 रेस टू -5. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, फिर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से अल्फा निकालना है विच इज इक्वल टू अल्फा इक्वल्स टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सी, और बाद में Ka निकालना है, दैट इज Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी. नेक्स्ट है, इन NaOH solution OH minus is 2.87 into 10 raised to -4. कैलकुलेट द pH ऑफ सोल्यूशन. देखो अब यहाँ पे बेस दिया है और बेस से आपको क्या कैलकुलेट करने को कहा है? pH. तो मैंने जब रेगुलर वीडियो बनाए थे तभी भी आपको बताया, जब भी बेस देंगे और pH कैलकुलेट करने को कहेंगे तो आपको पहले POH निकालना होगा, क्योंकि कोई भी बेस का pH नहीं होता है, POH होता है. तो पहले आपको POH कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन. OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, उसे जस्ट सब्सिट्यूट करो तो आंसर मिल जाएगा 3.54. अब इसको आपको डाल के pH कैलकुलेट करना है, तो pH इक्वल्स टू 14 माइनस POH, बिकॉज pH प्लस POH इक्वल्स टू 14. Therefore pH इक्वल टू 14 माइनस POH. तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3.54 और वो हो जाएगा 10.46. सो द pH ऑफ NaOH इज 10.46, क्योंकि वो बेस है इसलिए उसका pH 7 से ग्रेटर है. नेक्स्ट है, डिफाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिराइव ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर एसिटिक एसिड. इसके लिए आप मेरा वीडियो नंबर 2 देखोगे. ठीक है, तो वीडियो नंबर 2 में आपको एक्सप्लेनेशन विथ थियरी मिल जाएगा. आप वीडियो को पॉज करके वो आंसर नोट डाउन भी कर सकते हो, तो इसके लिए आप मेरा वीडियो नंबर 2 देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द pH एंड POH एंड डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH. इसके लिए आप मेरा वीडियो नंबर 3 देख लीजिए. नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस के लिए आप मेरा वीडियो नंबर 4 देखिएगा. ठीक है, बट अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन ऑफ CH3CO2 NH4 इज न्यूट्रल वाई. ये मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, तो अमोनियम एसिटेट इसका नाम है, CH3CO2 NH4 का नाम है अमोनियम एसिटेट. तो अमोनियम एसिटेट जो है वो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड इन एसिटिक एसिड एंड वीक बेस अमोनिया से बना है. तो अमोनियम एसिटेट में एक्चुअली एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया रिएक्ट होके बनाते हैं अमोनियम एसिटेट, और ये वाला सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बना है. तो वीक एसिड और वीक बेस के लिए हमने 3 कंडीशंस पढ़ा है. करेक्ट, वीक एसिड और वीक बेस जब भी कॉम्बाइन होते हैं तो 3 कंडीशन है कि वो एसिडिक भी हो सकते हैं, वो बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं. पर उन्होंने यहाँ पे गिवन दिया है कि वो न्यूट्रल है, बस आपको एक्सप्लेन करना है. तो अमोनियम एसिटेट ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स अमोनिया एंड एसिटिक एसिड, और दोनों भी क्या है? वीक है, और दोनों भी इक्वली डिसोसिएट होते हैं. ठीक है, अमोनिया और एसिटिक एसिड इक्वली वीक हैं और दोनों भी इक्वली डिसोसिएट होते हैं. इसलिए जब भी अमोनियम एसिटेट हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको इक्वल नंबर ऑफ H प्लस आयन और इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा. और जब भी आपके सोल्यूशन में H प्लस और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है तब आपका सोल्यूशन न्यूट्रल होता है. और इसलिए एक्वस सोल्यूशन ऑफ द अमोनियम एसिटेट इज न्यूट्रल, क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस करने पे इक्वल नंबर ऑफ H प्लस इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आयन बना पाता है, और वो है सॉल्ट वीक एसिड एंड वीक बेस का.
नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ KCN इज सप्रेस्ड बाय एडिशन ऑफ HCl, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर है कॉमन आयन इफेक्ट में, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट के वजह से क्या होता है, जो HCN है वो डिसोसिएट होते वक्त वो तो वीक है, तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा H+ और CN- में, और उसमें यदि आप HCl डाल दोगे तो HCl कंप्लीटली डिसोसिएट होगा और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि CN- जो डिसोसिएट भी हुआ है वो वापस H+ के साथ कॉम्बाइन करके HCN दे देगा। तो जितना भी HCN डिसोसिएट होने वाला है वापस HCN बनने वाला है, इसलिए इसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा और इसकी वजह से आप इसको डिसोसिएशन ऑफ HCl इज सप्रेस कर सकते हो जस्ट HCl ऐड करके। तो इसका आंसर आपको मिलेगा कॉमन आयन इफेक्ट में, दैट इज वीडियो नंबर 6। Next, derive the relationship between the degree of dissociation and the dissociation constant in weak electrolyte। तो degree of dissociation constant के लिए आप मेरा वीडियो नंबर 2 देख लीजिए। नेक्स्ट है sulfides of cation of group 2 are precipitated in acidic solution, whereas sulfides of cation of group 3b are precipitated in ammonially solution of H2S। Comment the relative values of solubility product of sulfides of this। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको ना आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3b कैटायंस आर प्रेसिपिटेड एट एज दे आर सल्फाइड्स। सो ग्रुप 2 और ग्रुप 3b के जो भी कैटायंस होते हैं ना, उनको यदि आपको प्रेसिपिटेट करना है तो आपको उनके सल्फाइड्स बनाना पड़ेगा। बट आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सल्फाइड ऑफ ग्रुप 2 कैटायन इज लोअर देन दैट ऑफ ग्रुप 3b कैटायन। तो ग्रुप 2 के जो कैटायन होते हैं उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो भी है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द ग्रुप 3b कैटायंस है। दोनों भी सल्फाइड बन के ही प्रेसिपिटेट होंगे, पर ग्रुप 2 के कैटायंस क्या है, लेस सॉल्युबल है लेस कम्पेयर टू ग्रुप 3b कैटायंस है। Therefore, the precipitation of cation of group 2 only small concentration of sulfide ion is required। तो ग्रुप 2 का क्या चाहिए आपको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब है, इसलिए वो बहुत जल्दी सॉल्युबल मतलब कॉन्सेंट्रेशन में जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं और उनका जल्दी प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो थोड़ा सा भी आप सल्फाइड आयन डालोगे तो ग्रुप 2 के जो भी कैटायंस है वो जल्दी से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, कब है। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब होने की वजह से वो बहुत जल्दी आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनका सॉल्युबिलिटी कम रहेगा और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा। नाउ दिस इज अचीव्ड बाय पासिंग H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl विच हैज़ अ कॉपर आयन विद H2S। तो आप ग्रुप 2 की जो भी आपको प्रेसिपिटेशन कर रहा होता है तो क्या कर रहा होता है, H2S गैस जो जनरेट करो लैब में, एक एस्ट्रोबेट होता है जिसमें H2S गैस जनरेट हो जाता है लैब में, और उस H2S गैस को आपको एसिडिक सोल्यूशन ऑफ दिस कैटायन से पास करोगे। तो जो हाइड्रोजन है वो कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट करता है और जो सल्फाइड है वो ग्रुप 2 के कैटायन के साथ प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। सो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ H2S इज सप्रेस्ड एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2- आयन इज डिक्रीज्ड एंड दिस रिजल्ट्स ओनली इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड ऑफ ग्रुप 2 while the sulfide of higher remain in the solution, they require higher concentration of H2- ion for precipitation। तो सपोज ये पूरे क्वेश्चन में आपको प्रूफ क्या करना था, देखो आपको यदि मैंने एक बीकर में एक सोल्यूशन दिया है जिसमें ग्रुप 2 और ग्रुप 3b दोनों भी कैटायन प्रेजेंट है और दोनों भी एक्चुअली सल्फाइड के साथ ही प्रेसिपिटेट होते हैं, और मैंने कहा कि दोनों को अलग करके दो, तो आप क्या करोगे, आप H2SO आप उस सोल्यूशन को एसिडिक बनाओगे HCl डाल के और उसमें H2S गैस पास करोगे। उससे की वजह से क्या होगा, HCl और H2S गैस दोनों मिलके कॉमन आयन इफेक्ट बनाएगा और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिसोसिएशन ऑफ H2S क्या होता है, सप्रेस हो जाता है। H2S का जब भी डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा तो सल्फाइड आयन जो जनरेट होने वाला है वो कम अमाउंट में जनरेट होगा, तो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होते ही ग्रुप 3b के जो एलिमेंट्स है वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको तो ज़्यादा सल्फाइड चाहिए, करेक्ट, ज़्यादा सल्फाइड चाहिए और वो जो बन नहीं रहा है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। इसकी वजह से ग्रुप 3 वाले प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, सिर्फ ग्रुप 2 वाले प्रेसिपिटेट होंगे, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपके सिर्फ ग्रुप 2 वाले प्रेसिपिटेट होंगे और सोल्यूशन में 3b वैसे के वैसे रह जाएंगे, और इसकी वजह से आप दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट गेट अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट हैविंग अ कॉमन आयन। तो इसके लिए आपको क्या एक्सप्लेन करना, कॉमन आयन इफेक्ट, दैट इज वीडियो नंबर 6, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
Next है the pH of a rainwater collected in certain region of Maharashtra on a particular day was 5.1. तो बारिश हो रही है, वहाँ पे जाके pH वो रेन वाटर कलेक्ट किया गया और उसका pH देखा गया तो 5.1 है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और उसके बाद परसेंट डिसोसिएशन। तो pH ऑफ द रेन वाटर क्या है आपका गिवन 5.1। आपको फाइंड आउट करना है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और परसेंट डिसोसिएशन। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज pH इक्वल्स टू एंड परसेंट डिसोसिएशन इज अल्फा इंटू 100। अब आपके पास है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, आपको सॉरी pH है और आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो pH गिवन है H प्लस के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस pH दैट इज माइनस 5.1। और जब भी आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो आपको +1 -1 करना है। तो ये हो जाएगा -5 -0.1 +1 -1। तो -1 को आप -5 में ऐड कर दो तो हो जाएगा -6 और 1 से सब्ट्रैक्ट करो 0.1 को तो हो जाएगा 0.9। तो ये हो गया बार 6.9 और इसका एंटी लॉग निकालोगे तो मिलेगा 7.943 इंटू 10⁻⁻6 मोलार। तो ये हो गया आपका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको फाइंड आउट क्या करने को कहा गया है, अल्फा। सो ये वाला जो HA है वो HA विल डिसोसिएट एज H3O प्लस A माइनस इन वाटर। सो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा। So alpha equals to also 7.943 into 10⁻⁻6। अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अल्फा को क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज इसका कुछ है तो ये भी इसका कॉन्सेंट्रेशन भी अल्फा अल्फा ही होगा, करेक्ट। और यदि आपको ये समझना है तो आप मेरा वीडियो नंबर 2 देख लीजिए कि इसका अल्फा ही क्यों हो जाता है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको समझ जाएगा ये अच्छी तरह से। सो परसेंट डिसोसिएशन इन नाउ इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। तो अल्फा मुझे पता है 7.943 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 कर दूंगी तो मिल जाएगा 7.943 इंटू 10⁻⁴। एक बार मुझे अल्फा मिल गया और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, तो ये हो गया मेरा पूरा आंसर। सो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फॉर दिस रेन वाटर इज 7.943 into 10⁻⁶, and my alpha is, that is the percent dissociation, not alpha but alpha into 100, that is percent dissociation is 7.943 into 10⁻⁴. Next है explain the relation between ionic product and solubility product to predict whether a precipitate will form when two solutions are mixed। तो इसके लिए भी आप मेरा वीडियो नंबर 6 देख लोगे, क्योंकि आपको उसमें IP और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KW का रिलेशनशिप देखना है। तो IP जब भी ग्रेटर होता है KW से तब सोल्यूशन प्रेसिपिटेट होता है, जब IP और KW इक्वल होता है तब सोल्यूशन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और जब IP इज लेस देन KW तब सोल्यूशन प्रेसिपिटेट ही नहीं होता। बट जब IP दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KW देन ओनली द सोल्यूशन विल प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा वीडियो नंबर 6 में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशन, एनी कॉमेंट, यू आर फ्री टू डू दैट ऑन askyadoubts04@gmail.com and even in the comment box. If you have liked my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends. And before departing, if you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. That's all for today. Thank you and stay